اور دوسری طرف وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اختلافات ہوئے، لیکن جو یہ جماعتیں کہتی رہیں کہ جی ہم خاص طور پہ کراچی شہر کے لوگوں کے مسئلے پر احتجاج کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مظاہرے نے خود یہ ثابت کیا کہ کراچی کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے، اور جن لوگوں کو لایا بھی گیا وہ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، ان لوگوں کو جھوٹ بول کر اس مظاہرے میں شرکت کے لیے لایا گیا۔ پتہ نہیں کسی کو کہا گیا کہ تمہیں گھر دیں گے، کسی کو کہا گیا کہ تمہیں پتہ نہیں کوئی نہ کوئی لالچ دے کے، کوئی جھوٹ بول کے ان کو لایا گیا، اور ان لوگوں کو لوکل گورنمنٹ کے قانون کے متعلق شاید کچھ پتہ بھی نہیں تھا، معلوم بھی نہیں تھا۔ اچھا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس جماعت کے لیڈرز بھی وہاں موجود تھے، پی ٹی آئی کے، جنہوں نے خود وسیم اختر کے اوپر کرپشن کے بڑے سنگین الزامات لگائے، سنگین ترین الزامات لگائے۔ ذرا کوئی آپ کو کبھی موقع ملے تو ذرا پوچھ لیجئے گا جنہوں نے الزامات لگائے تھے کیا وہ درست تھے یا غلط تھے۔ پھر ایک اور صاحب نے بھی تقریر کی جن کے والد محترم جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ ذرا ان صاحب سے یہ بھی پوچھیے گا کہ آپ کے والد محترم جو کہتے رہے ماضی میں وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ دونوں بنیادی چیزیں ہیں۔ ان سے یہ کہیں کہ آپ جو تقریر کر رہے تھے ان دہشت گردوں، ان قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، جو والد صاحب آپ کے فرماتے تھے وہ درست تھا کہ غلط تھا۔ اور پھر پی ٹی آئی سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ آپ کے جو رہنما الزام لگاتے رہے کہ وسیم اختر نے اور ایم کیو نے بڑی کرپشن کی ہے، اور خیر دہشت گردی کے بھی لگاتے رہے، لیکن یہ تو تازہ بات ہے نا، کرپشن کے الزامات ان کے اوپر، وہ آپ کا موقف وہی ہے یا چینج ہو گیا ہے؟ یہ باتیں میں آپ کو صرف اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑی رہی ہیں کچھ عرصہ پہلے تک، اور پھر میرا سوال پی ٹی آئی سے اور جی ڈی اے کے دونوں رہنماؤں سے ہے کہ ایم کیو ایم جو بار بار یہ کہتی ہے، اور بینر اب تک لگے ہوئے، دیواروں پر چوکنگ آج بھی ہوئی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دیہی سندھ کا شہری سندھ پر قبضہ نامنظور، جو یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اسپتالوں پر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور، پھر جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ کراچی پر قبضہ نامنظور۔ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے اس سوال آپ ضرور پوچھئے کہ ذرا ایم کیو ایم سے پوچھیں تو صحیح کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی غیر مقامیوں کا قبضہ اسپتالوں پہ نامنظور، یہ غیر مقامی ہیں کون؟ اس کی وضاحت ہونی چاہیے نا۔ جب آپ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے، تو پھر کسی نہ کسی ایک کامن ایجنڈے پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ بلدیاتی قانون کے اوپر۔ بلدیاتی قانون کے اوپر ایم کیو ایم کا ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسپتالوں کے اوپر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور، وہ کہتے ہیں کہ شہری سندھ پر دیہی سندھ کا قبضہ نامنظور۔ تو ذرا ان سے پوچھ تو لیں کہ کیا پی ٹی آئی اور جی ڈی اے ایم کیو ایم کے اس موقف سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنانے والا سلسلہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں۔ میں جماعت اسلامی کو بھی ایک طرف رکھتا ہوں اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ابھی اس میں نہیں تھی شامل، لیکن یہ بہت ایک سنگین بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغض میں، اور خاص طور پہ جس طرح میں نے پرسوں بھی کہا کہ جو عوامی مسائل ہیں، جو عوام اس ملک کی بد دعائیں دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی حکومت کو، جو لان تان پورے ملک میں ان کے اوپر ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کر ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی خیبر پختونخوا میں بھی وہ قانون نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے اندر یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے
کہ 350 अरब रुपए का जो मिनी बजट इन्होंने इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के लोगों के ऊपर थोपा है, उससे अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो IMF के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके पास गिरवी रख दिया है, उससे अवाम की तवज्जो ये हटाना चाहते हैं। परसों 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट बिजली का इजाफा हुआ, कल 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, और सिर्फ 2 महीनों में पेट्रोल जो बिजली है उसकी जो उसके ऊपर वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाते हैं, पिछले महीने में 4.25 रुपए, इस महीने में 4 रुपए 30 पैसे, और पेट्रोल की कीमतें 15 दिनों में 7 रुपए इन्होंने बढ़ाई है। 7 रुपए। जब ये आए थे तो पेट्रोल की कीमत थी 87 रुपए फी लीटर, और आज है 148 रुपए फी लीटर। अंदाजा तो लगाइए कि क्या इन्होंने तूफान और क़यामत बर्पा की है। जब ये आए थे तो इस मुल्क के ऊपर कोई कर्जा था 25 अरब डॉलर का, आज 45 अरब डॉलर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 सालों में, और PML की हुकूमत ने 5 सालों में जितना कर्जा लिया, उन दोनों 10 सालों की हुकूमतों से कई गुना ज्यादा कर्जा ये 3 सालों में ले चुके हैं। अवाम की तवज्जो ये इससे हटाना चाहते हैं। पूरे मुल्क में गैस का शदीद तरीन बहरान है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है, ना घरों में मिल रही है, ना इंडस्ट्रीज में मिल रही है, ना CNG स्टेशन को मिल रही है। लोगों की तवज्जो वो इससे हटाना चाहते हैं। महंगाई, दवाई की कीमतें जो हैं वो रोजाना महंगी होती जा रही हैं, और ये जो मिनी बजट आया है इसकी वजह से और महंगी होंगी, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो चीनी का बहरान आया था, जो गंदम का बहरान आया था, जो यूरिया का बहरान इस वक्त चल रहा है, जो LNG का बहरान इस वक्त चल रहा है, जिसके पीछे PTI के ATMs का किरदार है, जिन्होंने हजारों अरब रुपए पाकिस्तानी कौम की जेबों से निकाल दिए हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मसला गैस की किल्लत है, महंगाई है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, दवाओं की बढ़ती कीमतें हैं, चीनी की बढ़ती कीमतें हैं, गंदम की बढ़ती कीमतें हैं, दाल चावल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, रोटी की बढ़ती हुई कीमतें हैं, या ये लोकल गवर्नमेंट का कानून जिसको हमने ठीक कर दिया है, बेहतर कर दिया है, या वो है? ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लोगों को डीप ट्रैक करने के लिए जो PTI का एक शेवा है, हमेशा से शेवा है। आप देखें, कोई क्राइसिस आएंगे ये उठ के कह देंगे सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, ताकि पूरी तवज्जो जो लान तान इनके ऊपर हो रही होती है ना, उससे लोगों को हटाएं और सिंध हुकूमत को मुरद इल्जाम ठहराएं, ताकि उसको ज़ेर बहस ले आए, वो मौजू बन जाए, और वो बाकी जो चीजें उससे सब हट जाए चीजें। अभी मैं कल वो TV पे ही देख रहा था कि मरी में जो वाकया हुआ जिसमें 23 लोग शहीद हो गए, उसकी एक रिपोर्ट आई है। यहां तो 23 लोगों को अगर कुत्ता काट ले तो यहां इतना शोर मचता है, वहां 23 लोगों का कत्ल हुआ है। वो जंगल में नहीं थे, सहरा में नहीं थे, किसी बयाबान में नहीं थे, पहाड़ों पर नहीं थे, वो इस्लामाबाद से कोई 1 घंटे की ड्राइव पे थे। अगर इस्लामाबाद से लोग पैदल भी निकलते उनको बचाने के लिए तो वो बच जाते, मरी से पैदल निकलते तब वो बच जाते। वो लोग चीखते रहे, उनके खानदान चीखते रहे, उनके खानदान राब्ता करते रहे इनसे। किसी की कोई हिस्स नहीं जागी कि 20-22 घंटे बाद वो लोग पता नहीं किस तरह बेचारे इस दुनिया से चले गए, उनकी हालत क्या होगी, जरा तसव्वुर तो करें आप। उन 23 लोगों के कत्ल पर किसी को शर्म नहीं आई कि कोई इस्तीफा दे, कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई खड़े होकर कोई बात करे। और वजीर दाखिला साहब फरमाते अगर मैं नहीं जाता तो 40 मर जाते। शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। मतलब ये कि आप चले गए तो 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद तो चले 17 आदमी बच गए, वरना शायद 40 मरते, 50 मरते, तो फिर आपको डूब मरना चाहिए कि आप पहले क्यों नहीं गए। ये 23 भी बच जाते। इस इशू पर इतनी बात नहीं हो रही।
23 लोग इस तरह बे सरो सामानी के आलम में बेकसी, पता नहीं बेचारों की क्या सूरत आलम की, कि बच्चे भी उसमें थे, बुजुर्ग भी उसमें थे, नौजवान भी उसमें थे। किन हालात में वहां उन्होंने वक्त गुजारे होंगे, 20-22 घंटे 24 घंटे जिसमें वो मर गए। कहते इंतजामिया जिम्मेदार थी। यहां कोई वाकया हो जाए छोटे से छोटा तो बिलावल भुट्टो जिम्मेदार है, वजीर आला जिम्मेदार है। वहां 23 आदमी मर गए बेसरो सामानी के आलम में, इस्लामाबाद से 1 घंटा दूर, और बस इंतजामिया जिम्मेदार है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। भाई बात इस पे होनी चाहिए कि बड़े फखर से जो वजीर ये कह रहे थे कि 1 लाख सयाह जो हैं वो चले गए, 1 लाख गाड़ियां पता नहीं क्या उन्होंने बताई कि वहां गई हैं। फिर कहते हैं जी जब इतनी जगह नहीं, लोगों को जाना नहीं चाहिए, जब आपने बताया था कि बर्फबारी लोगों को जाना नहीं चाहिए। 1 दिन पहले आप फखर से कह रहे हो कि 1 लाख गाड़ियां चली गई हैं, जो मईशत की तरक्की की निशानी है, और अगले दिन आप कहते हो नहीं लोगों को तो जाना नहीं चाहिए था। मतलब इसमें भी कसूर उनका जो बेचारे गए थे, कि आप गए क्यों थे? जाने वालों को क्या पता कि वहां लाख गाड़ियां, जाने वालों को क्या पता कि इतने नालायक नाइल तरीन जो है वहां हुक्मरान बैठे हुए। उस पर बात नहीं हो रही है। यहां एक वो इमरानी न्याजी सर्कस के जोकर जो हैं, जो बड़ा टोला है, खैर जोकरों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उसमें एक चवल वजीर हैं जो चवलों के भी सरदार हैं, तो बेतुकी बहुत सारी बातें कर रहे थे। भाई आप छोड़ दें सारी बातों को। अहमद जवाद जो आपके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, जिन्होंने आपके मुतालिक जो कहा है उसका जवाब दें। मुझे तो नहीं पता, सच्ची बात है। उन्होंने कहा कि वो जब ये यूसी का इलेक्शन लड़े थे, जो हार गए थे, उस वक्त उन्होंने शायद अपने एसेट्स बताए थे, वो 5,000 10,000 थे। मैंने नहीं चेक किए, हो सकता है इतने, मुझे नहीं पता कितने थे। और अभी वो कहते हैं कि अरबपति हो गए। अहमद जवाद साहब ने कहा है, यकीनन वो आपको मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, उसके जो है वो जवाब ज़रूर देना चाहिए। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो एक साहब उनको कह रहा था ये भी कहो कि हमारी वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो उनको वैक्सीन भी भिजवा देंगे अगर उनको ज़रूरत है इस बात की। तो कोई क्लिप था, पता नहीं आप लोगों ने बनाया होगा, वो चवल वजीर तकरीर कर रहा था, वो पीछे से कर रहा था हमारी वैक्सीन की बात करो, हमारी वैक्सीन की बात करो। तो वो वैक्सीन भी हम जहाँ नहीं होगी उनको पहुँचा देंगे, अगर उनको चाहिए तो घर पे भिजवा देंगे उनके। क्या थी ये कहा था उसने? अच्छा, मैंने ये सुनी, पता नहीं किसी ने बना के भेजी थी, वो कह रहा था कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, हमारी वैक्सीन की बात करो। देखें एमक्यूएम ने जो कुछ इस शहर के साथ किया, मुझे सच्ची बात है, आप में से पता नहीं कितने सहाफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो उस वक्त भी शहर में सहाफ़त कर रहे थे जब एमक्यूएम की दहशतगर्दी की यहाँ उरूज पे थी। कई सहाफ़ियों को शहर छोड़ के जाना पड़ा जो अपना मिजाज नहीं बदल सकते थे। किस तरह आपको बुला के वहाँ 4-4 घंटे इंतजार कराया जाता था, फिर किस तरह आपको 4-4 घंटे वो बेतुकी तकरीरें सुनने पर मजबूर किया जाता था। फिर सारे